So, okay, fine. So let us start our lab session. Okay. So we have tried maximum to give the advantage of our lab session by online session. Okay. So lab sessions are those things which are conducted in the laboratories, on the fields, okay, and by the face to face. So okay. So we have tried up to 100%, but more than 100% that we will bring the laboratories to your home. Okay. So I hope that that will help you a lot more. Ultimately, while you are not coming in the college, it is a loss to you, because however the pandemic is there, but the loss is yours because you are not getting the right laboratory instrument or right practicals. Okay. So learning is a thing, but when you touch it, you can feel it. It will help you to learn very easily and very smartly. Okay. So these are the things that I want to share with you. And we will start our surveying lab session first, uh, based on the different kind of instruments, which kind of instrument we are using in the surveying field. As we have learned the different fundamental principles of the surveying, different classification of the surveying, and all the relevant points that we have learned in the surveying lectures, that are we are going to applicable in the surveying field. Okay. In the field actual, we will measure the distance, we will measure the angle. Okay. So that all kind of laboratory works we need to carry it out in the field. Okay. So I'm sharing a screen with you so that you can get idea which kind of practical we are doing in the surveying. So I'm sharing with you right now. Now I hope that this is visible to you. So you can write down your enrollment number in the chat box along with your name. So on your screen right now, we have a few general instruction for the surveying laboratories, which may be applicable when you are in the college or in the laboratories. So what we are trying to convey you is that your this is the lab manual for the surveying subject. Okay. So what we are trying to convey you is manual should be maintained neat, clean, and systematic. It is compulsory for students to bring their record book and manuals in every laboratory turn. So these are the general instruction which is applicable when you are coming to the college. Okay. But the main important point is you need to, this is, you can see the fourth one, students should draw the neat sketch and with the pencil in the manual. These kind of instructions are very common, but somehow the many students are forgotten. Drawing sheet should be the maintained carefully. Huh? Then assignments should not be copied. So these are the few common instructions for the laboratory sessions. So it is not applicable to you right now, except certain kind of the this kind of instructions. Assignments should not be copied. Likewise, a drawing sheet should be maintained carefully. Likewise. Okay. So these are the common things. But what actually we are trying to do is these four experiments. Okay. So there are four experiments are there. Okay. And based on the syllabus, we will cover your tutorials as per the current situation. We cannot go for the construction site visit due to the pandemic here. Okay. We will assign you a task related to the building component drawing. Okay. We will do what we can possible. I can give you assign a task and you need to complete by within the time as soon as possible. Okay. So right now our main motto is, do you remember that we have learned that how the surveying is works? So for that I'm going to the that blackboard, whiteboard. So you have an idea regarding what actually I'm trying to convey you is, okay. So this is our create a new board. So
Do you remember that what we have covered is we have start with the point. Are you getting this or not? Then we have taken a scale and we have joined these two lines likewise. So suppose let us say I am mentioning this as a point and second point is a B. So if we want to measure the distance between A and B, how we are going to measure in the field? That is our main concern. So that we will measure in the field by using the chain survey, which is our first practical. Here you can see the linear measurement. Are you getting this or not? We have started from the point, we have connected 2 points and we have formed one line which has a particular dimension which is in the centimeter, meter, kilometer, etc. So first and foremost thing, we will measure the linear measurement by the chain survey. Okay. So this you need to understand, linear measurement by chain survey. Now what we are trying to do is we will join another line which is connected where A point is common. Okay, so A point is common and I will join these lines. I am making another line which is passing through the A and it will connect the third point which is C. Okay, so what we have done, we have joined another line having a C point. Okay, and right now we have make an angle here theta. Okay, so that theta we can measure by the second experiment which is angular measurement. There are two types of the compass are there in your mobile phone. There is also a compass, prismatic compass and surveyor compass. So these two methods are there to measure the angle. जब आप छोटे थे प्राइमरी लेवल पे थे तब आपको ट्राइंगल दे दिया जाता था कि इसका एंगल जो है 60 डिग्री है. लेट अस से ये जो एंगल मैं आपको पहले से बता देता था कि ये जो एंगल है आपको 75 डिग्री लेना है. ठीक है, तो वो 75 आया क्यों वो आपको समझने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, so that is angular measurement and we can measure the angular measurement by two methods. Number one, prismatic compass. Second one is surveyor compass. Now I will show you all the equipments which are available in the in our laboratory to you so that you can get the idea. I will bring you from your home to our laboratory through a video, so you will get the idea what kind of things we are going to do in this semester. Okay, third thing, now I am joining once again. Let us say, let us join the D point here. Okay, so I'm joining a D point here. I'm considering this as a C point. Okay, સર તમારો અવાજ કપાતો કપાતો આવે છે. બીજા લોકોને કેમ થાય છે? I think I have a full network here. કોઈ ઇશ્યુ નથી, પણ બીજા કોઈને પ્રોબ્લેમ છે? ચાલા આવે છે અવાજ? અનિકેત ઉંધાર, am I audible? હા સર અવાજ આવે છે. ક્લિયર છે અવાજ? હા સર. ઓકે, એનીબડી એલ્સ? મનન પરમાર અવાજ આવે છે? હા સર. હા હા, ઓકે ઓકે. ઋત્વિક વાજા? યસ સર. અવાજ આવે છે? કપાતો કપાતો આવે છે? ના ના સર બરાબર છે. ઓકે, સો જેને પ્રોબ્લેમ છે they can rejoin. Okay, and make sure that you are in the network zone. Okay, so now our what we have done, we have taken a point, we have generated a line AB, we have once again generated line AC. Now I am trying to draw a few more lines so that you can get the idea. Now I am taking this as a D point. I want to simply join this line C point here. I am marking this as a C point. Okay, and now I am going to rejoin the
another line with the D point, which is I am marking as a D point. So simply I will put it here D. This is a C point. Okay. One more time. Let us join this E point also. So I'm marking as a E point here. So now let us join once again D to E. Another line. Okay. One more time. We will complete the whole loop so you will get the idea what we have formed. Okay. So what we have formed, we have formed a particular area. This is your area, or this is your plot boundary in which you are going to be a survey. Okay. So this shaded area is your boundary on which you are going to be a survey. So for that you require the area of this area, particular field or particular plot. So how you can measure the area? by sitting in the office. ठीक है, तो आप ऑफिस में बैठ के अगर आपको मैं प्लॉट साइज दूं, तो आप ऑफिस में बैठ के कैसे जो है एक्यूरेटली एरिया निकाल सकते हो दिस फिगर का. ठीक है, तो ए बी ई डी सी ए हमारा लूप क्या हुआ. हमें अगर एरिया फाइंड करना है, इफ यू वांट टू मेजर द एरिया ऑफ ए सर्किट ए बी ई डी सी ए, so how we are going to measure that? So that we can measure by the third experiment, that is your planimeter. Planimeter is an instrument which are measure the area of a particular region or a particular plot having a irregular boundary. अगर मैं ऐसा एरिया भी बना दूं तो भी हम प्लानीमीटर से मेजर कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसी फिगर बना दी है ना, इस तरह से, तो इसका एरिया भी हम प्लानीमीटर की मदद से निकाल सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए ऐसा फिगर बना दे, कोई सा भी आप फिगर बना दो, इसका एरिया हम प्लानीमीटर की मदद से निकाल सकते हैं. फिर भी ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका तो हम निकाल ही पाएंगे. ठीक है, तो दैट इज अवर main concern in the practical number 3, which is area measurement. And finally, let us say I am giving you one example. If you want to construct a road, तो रोड पहले इतना लेवल सरफेस नहीं होगा, ये आपका ग्राउंड लेवल है सपोज, है ना. कंसीडर दिस एज ए ग्राउंड लेवल. तो अगर आपका रोड का लेवल आपको फिक्स करना पड़ेगा पहले तो, कि कितनी हाइट पे हम रखेंगे ग्राउंड से, ताकि हमें जो है ये लैंड सारी जो यहाँ पे है वो यहाँ पे फील कर सके, है ना. तो जैसे कि मान लीजिए ये लैंड को हम यहाँ पे फील करेंगे पहले, तो ये लेवल सरफेस बन जाएगी. ठीक है, और ये जो इतनी बची हुई है उसको भी यहाँ पे हम फिल करेंगे, तो अभी हमको लेवल सरफेस मिल जाएगी. फिर हमें इसको कट करना पड़ेगा, इसको कट करेंगे, फिर यहाँ पे फिल करेंगे. सो फॉर दैट यू रिक्वायर्ड ए सर्टेन काइंड ऑफ द लेवल. तो मैं वापस से अगर आपको बताऊं, तो मान लीजिए आपको एज्यूम करना है, ठीक है, कि हमने एक एनालिसिस किया और उसकी मदद से हमें ये पता चला कि हमारे रोड का जो लेवल है वो इतना होगा. ठीक है, डॉटेड लाइन में से हम बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे. ठीक है, सो ग्रीन लाइन मैंने जो बनाई है वो आपका रोड लेवल है सपोज, है ना. तो अब आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक लेवल चाहिए होगा. रोड सरफेस मैंने बना दिया. ठीक है, तो दिस इज योर रोड सरफेस. अब आपको क्या करना होगा, आपको जो है ये जो एक क्रॉस सेक्शन है ये तो आपको पता ही है. ठीक है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था फर्स्ट सेमेस्टर के, कि हमारा जो रोड होता है वो हमारे नॉर्मल ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है. ठीक है, फिर हमारी जो रेलवेज होती है वो रोड लेवल से ऊपर होती है. फिर हमारे एयरवेज जो होते हैं वो रेलवे लेवल से ऊपर होता है. क्यों? क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आती है, ठीक है, कोई फ्लड आता है, तो रोड अगर फंक्शनिंग नहीं है तो हम रेलवे की मदद से जो नेसेसरी सामान है वो पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, हम आर्मी की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह रेलवे से कर सकते हैं. अगर रेलवे भी नहीं काम कर रहा है, फंक्शनिंग नहीं है उस रीजन में, तो आप एयरवेज की मदद से
एयरवेज तभी कारगर होगा जब आपका लेवल रेलवे से ज्यादा ऊपर होगा, ठीक है। तो सिमिलरली दिस you are going to be, let us say I'm consider this as a 0.000 मीटर, तो ग्राउंड लेवल को मैं 0 बता देता हूँ। फिर ये ग्रीन सरफेस को मुझे कितना ऊपर लेके जाना है, सपोज मैं इसको बोल दो कि 0.5 मीटर ऊपर लेके जाना है, ठीक है। या फिर मैं सिंपल बोल देता हूँ कि हमका हमारा ग्राउंड का लेवल जो है 0.5 मीटर अबोव है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है हर बार हमें ये डिस्टेंस मेंटेन करना होगा ताकि हम अच्छे से मेजर कर सके, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस कितना रखना है, 0.5, यहाँ पे 0.5 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0.5 होना चाहिए, ओके। यहाँ पे भी 0.5 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0.5 होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सभी जगह आपका रोड का लेवल जो है वो स्मूथ होना चाहिए और एक ही जगह पे होना चाहिए। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे कि आपको ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला है ना, इसको आपको कट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपको कट करना पड़ेगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है आपको कट करना पड़ेगा और उसको यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। सिमिलरली आप ये वाला पोर्शन भी कट कर दीजिए, ये वाला, इसको भी आप यहाँ फिल कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे फिलिंग की वजह से आपको एक लेवल सरफेस मिल जाएगा, है ना, ठीक है। सिमिलरली ये बहुत ज्यादा पोर्शन है, तो इसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और इस तरफ फिल कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पे भी आपको लेवल सरफेस मिल जाए इस तरह का। तो वो लेवलिंग वाला जो पोर्शन है, वर्टिकल डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं, ठीक है, कहीं पे भी, so that is our fourth experiment, vertical measurement, that we are going to measure with the dumpy level, okay. So these are the four major experiments that we are going to discuss in the surveying laboratory sessions, okay. So these are the four major experiments. Apart from that, you can go for the fifth number experiment, introduction to the surveying lab and the instrument, that we are going to discuss today onwards. Sixth number, construction site visit. If this pandemic allows us, we will go for it. Otherwise, we will skip that, or we will give a brief introductory session about the construction site visit. That's it. Then building component drawing. These are the things, if we are going to convey you or we will give the task, you need to complete it, okay. So based on your syllabus, we will complete all the tutorials and the experiment. Our main concern is we will perform all the four experiments, okay, via online, and we will give a task regarding to the tutorial if it is possible, okay, and if it is important to you, okay. So these are the concept, 7th, 8th, 9th and 10th, that you will learn in the fourth semester and fifth semester. So right now our concern is 1 to 6 only, okay. If required, we will go for the 7th one also, but the main concern is for experiments and construction site visit, so that you can get the idea regarding how the surveying is ongoing in the field. So now it is requested all of you to write down the names of the experiments, all the four practical names, okay. So it is on your screen now. So in your notebooks, you can write down the experiment names along with the number. Let us say first experiment, second, third, fourth, okay. So write down these things. I'm giving the time of 2 minutes. As you can complete, you can write down the yes in the chat box, okay. So those students who have not written the enrollment number, you can write down that also in the chat box apart from yes, okay. So I'm giving you 2 minutes time, so you can write down the experiment names, or you can simply take a screenshot of this and you can write down if any kind of network issue is there, okay. So I'm coming back to you. I'm coming back to you in 2 minutes.
ઓકે, સંતોષ કુમાર, યસ. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. યુ મસ્ટ હેવ ટુ ટેક ધ સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે. ઋત્વિક વાજા, યસ. કેવલ દવે, યસ. મિત કવાર, યસ યસ. બાકી કેટલાને છે? નો લખી દો. બાકી કોણ લખે છે અત્યારે? ઓકે, ખંજન પરમાર, અનુજ કચોડિયા, યસ. બાકી છે કોઈને? એનીબડી ઇઝ રિમેનિંગ? Okay, so of that you have taken the screenshot of that. I am giving you 1 minute. I am giving you 3 second time. You can just take a screenshot of it and keep in your mobile phone. Okay, as a image you can. Okay, so next is you need to write down the tutorial, but introduction of the surveying and lab instrument. That's it. Next task we will give. Just write down the 5th one. Okay, and remaining one we will discuss if time allows, and that you are going to learn in the 4th and 5th semester. So it is not required to go for that kind of experiments and tutorials. So right now just write down the 5th number, and if time permits we will go for the construction site visit. So write down the 5th and 6th one, or simply you can take a screenshot of that also. Okay, 5th and 6th, that's it. These two only, 5th and 6th. Okay, so right now I'm asking you that now do you understand how and which we are going to learn the surveying laboratory session? કોઈ મને સમરીમાં કહી દેશે કે સાહેબ પહેલા આપણે આ કરીશું, પછી આ કરીશું, પછી આ કરીશું? પ્રસિદ્ધ ચાવડા. હા, તમને ખ્યાલ આવ્યો ફ્લો શું છે આપણા સર્વેઇંગ લેબોરેટરી સેશનનો? શું કરીશું આપણે સૌથી પહેલા? ના સર, ખ્યાલ ન આવ્યો કાંઈ. પૂછવાનો હતો પણ છે ને પછી મારે એરર આવી જાય છે. ઓકે, ચલો સુમિત આદ્રોજા, તમે કહી શકશો? તમે સાંભળજો, બરોબર? પ્રસિદ્ધ. હા સર. સુમિત, આપણે તમને ફ્લો ખબર પડી આપણે શું કરવાના છીએ સર્વેઇંગ લેબોરેટરી સેશનની અંદર? આ કંઈક મેં તમને બતાવ્યું હોય એના ઉપરથી તમને કંઈક ખ્યાલ છે? ओके, કોને સમજાણું છે? संतोष, खबर पड़ी? संतोष, आपको पता चला? संतोष कुमार, यस सर. हमारा सर्वेइंग लेबोरेटरी सेशन का फ्लो क्या रहेगा ये आपको पता चला? यस सर. हाँ, बताइए कुछ उसके बारे में. जैसे सर मेरा टोटल हम 4 एक्सपेरिमेंट जो हम लोग का मेन है, जैसे उसमें है कि फर्स्ट जो है सर वो लीनियर मेजरमेंट है. ठीक है, ओके. तो वो जो है सर हम लोग लीनियर मेजरमेंट का मतलब हो गया कि यानी कि एक लाइन, यानी कि जैसे स्केल से हम लोग करते हैं उस टाइप से सर चेन के थ्रू हम लोग उसका अथी करेंगे, सर्वेइंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे. ओके, दूसरा? सेकेंड है सर एंगुलर मेजरमेंट. तो एंगुलर मेजरमेंट से वो जो हम लोगों जो नापा, मान लीजिए ये लिनियर मेजरमेंट, उसके बीच में जितना भी एंगल बन रहा है वो मेजरमेंट करेंगे हम लोग इसमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट में. ओके. और उसके बाद जैसे ये हम लोग मान लीजिए कोई भी लिनियर मेजरमेंट किया, अब उसका हमको एरिया निकालना है, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग वो करेंगे. ओके. ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है सर वो वर्टिकल मेजरमेंट है. मान लीजिए सर लेवलिंग, जैसे हमको रोड है, रोड बना रहे हैं, मान लीजिए रोड जो है वो कहीं वर्टिकल है, कहीं पे लिया ऊंचा है, उसको लेवलिंग करना हो तो वो इस सब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में करेंगे. ओके, वेरी नाइस. एनी अदर? खुशी पटेल और खुशी रावल? खुशी छे? નથી?
ખુશી રાવલ સર audible ચોથું to you? સમજાઈ દીધો ને સર. હા 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 હું સમજાવીશ તમને સમજાવીશ એટલા માટે જ તો હું અહીંયા છું તમને સમજાવીશ પણ હું તમે કેટલું ગેઇન કર્યા છે એ જાણી લઉં પછી તમને હું ફરીથી ઇનપુટ આપી દઉં ઓકે ખુશી એટલે હા સર પહેલા છે હા ને આપણે લિનિયર મેઝરમેન્ટ કરવાનું ચેન સર્વેઇંગ થી પછી એંગ્યુલર મેઝરમેન્ટ તમે જેમ ઓલું ટ્રાયેંગલ કરીને બતાવ્યું એવી રીતે હમ હમ પછી એરિયા મેઝરમેન્ટ બાય પ્લેન મીટર પ્લાનીમીટર હા પછી વર્ટિકલ મેઝરમેન્ટ હા એરિયા okay fine your voice is not clear okay so we will shift to the Jala તમને ક્યાંય ખ્યાલ આવ્યો આપણે શું કરવાના મેઝરમેન્ટ છે બાય પ્લેન ખુશી your voice is not clear so I am shifting to the another person okay so keep your mic mute I will get back to you Kripal Singh Jala okay Manan am I audible to you યસ સર હા મનન તમને શું સમજાણું સર સર એકચ્યુઅલી હું બાઇક ઉપર છું ગામડે જાઉં છું તો એટલે સાંભળું છું સર ટ્રાય કરું છું આમાં એટલે ઓકે બાકી હું રિપીટ લેક્ચર જોઈ લઈશ એટલે હા તો એક કામ કરી દે લેક્ચર માંથી તમે નીકળી જ જાઓ કારણ કે ડ્રાઇવિંગ કરતા કરતા પછી રસ્તો જ છૂટી ના ના જાય ના સર હું પાછળ બેઠો છું આ જો અચ્છા સર અવાજ આવે છે અચ્છા એવું છે હા હા તો એટલે વાંધો પણ નહીં હવે નહીંતર હાઈવે ઉપર અવાજ બહુ આવતો નતો પણ તોય મેં કીધું અટેન્ડન્સ માટે થોડુંક તો સાંભળું એમ એટલે બાકી હા પછી રિપીટ જોઈ લઈશ ઓકે સો ધેટ ઇઝ યોર પ્લસ પોઈન્ટ રાજકુમાર વૈષ્ણવ કઈ ખ્યાલ આવ્યો ના સર ઓકે કોને ખ્યાલ આવ્યો છે they can brief it out then I will explain once again with the more detail anybody wants to try આનંદ જોશી ખ્યાલ આવ્યો શું કહેવા માંગીએ છીએ એક્સપેરિમેન્ટ ની અંદર થોડોક સર હા થોડોક બોલો ખ્યાલ આવ્યો અડધું કેટલો ખબર પડી ગઈ કેટલો ખબર પડી બોલો સર પેલું જે આપણે હતું લાઇનર મેઝરમેન્ટ રેડિયામાં ચેન સર્વિંગ નું કરવાનું હતું એટલે એમાં ગમે એરિયા નું હોય ને પછી બીજામાંથી આપણે એનો થીટા થીટા કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનો એનો એંગલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનો એ હતું હમ પછી ત્રીજું એરિયા મેઝરમેન્ટ હતું એમાં કોઈ પણ એરિયાનો પ્લેન આપણું કઈ પ્લેનીમીટર આપણે કાઢવાનું હોય ને એના માટેનું હતું હમ અને ચોથું હતું ને સર એમાં આપણે કોઈ પણ રેલવે પછી એરપોર્ટ ને એ બધા રોડ હોય ને રોડ એના વિશે હતું કે ઊંચા હોય ને મીન્સ કે કઈ કન્ડિશનમાં કઈ વપરાય આપણે ક્યાં મદદ લેવી એમ okay fine so right now I am sharing a screen with you which is our different kind of instrument with us in our laboratory so I am sharing that screen also so keep all four practicals in your mind and let us see that video so that you can get the idea how we are going to perform the surveying experiments okay so right now I'm sharing a screen with you okay so audio is not required for that you just have to observe which kind of instrument that are available in our laboratory okay audio is not important so I hope you can see that this is our laboratory instrument of the surveying okay one more time so you will get the idea this is the instrument you're going to use during the practical sessions okay so I'm just going back to you so this is the chain okay here you can see we have the first practical linear measurement by the chain survey so that instrument is here on your screen chain okay so how we can measure the distance between 2 points that we can measure from the this chain okay this the name of this chain is the metric chain okay second practical let us go for the second practical see this is the compass for the angular measurement okay so by using this compass this is the prismatic compass we will understand we will understand that in detail in while we are performing a
a particular experiment. Okay, so this is the prismatic compass. Okay, the ranging rod, this is called the ranging rod. Then we have a tripod stand over here. This is the, you can see on your screen, this is the prismatic compass. Okay, उसके पास में जो है रेंजिंग रोड है, ठीक है, उसके बाद में जो है वो ट्राइपॉड है, ये हमारा दूसरा कंपास है। यहाँ पे जो मैं राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपास, कंपास इज नथिंग बट એને તમે હોકા યંત્ર કયો, બરોબર? તો we have a modern kind of that compass which is available in your mobile phone also. Okay, so this is the surveyor compass. Okay, ફરીથી this is the second practical. You can see that the compass, there are two types of the compass. Number one is this, and second one is, you can see this. Okay, then we will go back to the our fourth, that is the dumpy level. You can see that dumpy level is there. By using this instrument we can measure the yellow color nu je dekhai છે, we can measure the different level from the ground. Okay, or from the fixed reference point. उसके पास में जो है वो लेवलिंग स्टाफ है। मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा सब इंस्ट्रूमेंट के, ताकि आप अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो ये उसके बाजू में जो है ये व्हाइट कलर का जो ब्लैक और व्हाइट बैंड्स यहाँ पे एक पट्टी सा दिख रहा है स्केल टाइप, वो है लेवलिंग स्टाफ। ओके, तो उसकी मदद से हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, वापस से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो बीच का जो है, ठीक है, वो लेवलिंग स्टाफ है। ठीक है, उसके बाजू में एक ट्राइपॉड स्टैंड है वापस से, उसके बाजू में दिस इज द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट दैट इज अवेलेबल इन अवर लेबोरेटरी, दिस इज द टोटल स्टेशन। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल स्टेशन है। इसकी मदद से जो है हमने जो पिछले जो सारे एक्सपेरिमेंट है ना, ये लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एरिया मेजरमेंट, लेवल मेजरमेंट, ये चारों प्रैक्टिकल अगर हम कंबाइन कर दे तो वो चारों के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज द टोटल स्टेशन। ठीक है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो ये टोटल स्टेशन क्या करेगा, आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करके देगा, दो लाइंस के बीच का एंगल मेजर करके देगा। आप किसी भी रीजन का एरिया निकालना चाहो तो इसकी मदद से एरिया निकाल सकते हो। फिर आप जो वो फाइल जनरेट करता है वो अपने पीसी में जाके वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है डेटा के साथ, वो भी आप कर सकते हो। सो दिस इज द टोटल स्टेशन। ओके, सो नाम ही इसका टोटल स्टेशन है। तो टोटल मीन्स इट विल कंबाइन ऑल द थिंग्स। ओके, सो टोटल स्टेशन आर देयर, यू कैन सी इट इज एज सिंपल एज योर मोबाइल फोन। अगर आपको मोबाइल फोन यूज करना आता है तो आपको टोटल स्टेशन यूज करना आ जाएगा, सिंपल। ओके, सो दिस इज द बॉक्स फॉर इट। ओके, उसके बाजू में जो है रेंजिंग रोड का दूसरा वर्जन, उसका मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, और ये जो है वो डिटेक्टर है, जो हमारा रे जाता है टोटल स्टेशन से, वो डिटेक्ट करेगा, वो रिसीव करेगा इस पॉइंट पे। ओके, तो इसका पहले ये बंद होता है। ठीक है, उसको आपको ओपन करना होता है। ठीक है, तो ये जो है वो मॉडर्न है। आप उसको बीच में आप देख सकते हो कि लाइन्स है। ठीक है, छोटी छोटी लाइन्स है, यहाँ पे सेंटर पे सब इंटरसेक्ट हो रही है। तो वो है अवर मेन पॉइंट, मेन टारगेट पॉइंट। इसको आप कहीं पे भी रखोगे, ये जो है टोटल स्टेशन डिटेक्ट करके आपको उसको ये कितना दूर रखा हुआ है उसका आपको डिस्टेंस दे देंगे। ठीक है, सो these are the all instrument which are going to be used in this practical. Okay, any doubt in this, anybody? नो सर। ओके, अब आप जो ये पूछ रहे थे सर हमको ये सीक्वेंस समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हम बेसिकली दो प्लेन में काम करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, दूसरा होता है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो पहले के जो तीन प्रैक्टिकल्स है, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट और एरिया मेजरमेंट, मैं 2D की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले तीन प्रैक्टिकल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। ठीक है, वो जमीन पे होते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट होता है, पॉइंट को हम कनेक्ट करें तो वो एक लाइन बनाता है। वो लाइन का डिस्टेंस हम चेन सर्वे की मदद से मेजर कर सकते हैं। अगर हम दो लाइन ले और उसको एक पॉइंट कॉमन रखे तो वो एंगल फॉर्म करेगा। तो वो एंगल जो है हम दूसरे प्रैक्टिकल से मेजर करेंगे। तीसरा जो है वो लाइंस अगर हम बनाते जाए और इरेगुलर फिगर हम बना दे इस तरह की। ठीक है, मैं आपको वापस से बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है, तो इसको हमने ज्वाइंट किया तो एक लाइन बनी। ठीक है,
तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम पहले प्रैक्टिकल की मदद से मेजर करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम दूसरी लाइन लेते हैं तो वो एक एंगल बनाएंगे थीटा, तो वो हमारा हो गया दूसरा प्रैक्टिकल, ठीक है। वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं, ठीक है, और मैंने इस तरह से कुछ फिगर बनाई, ठीक है, लाइकवाइज, तो मैंने इसको यहाँ पे ए से लेके एफ तक नाम दे दिया, तो इसका एरिया जो है वो हम तीसरे प्रैक्टिकल से मेजर करेंगे, ठीक है। कीप इन माइंड दैट इट इज इन द 2D, 2 डायमेंशनल, ठीक है, इट इज इन द 2D। अगर दूसरे प्लेन में आते हैं, दैट इज योर वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्टर कितना ऊपर रहेगा आपके फ्लोर से, प्रोजेक्टर कितना ऊपर रहेगा वो हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फिक्स करने के लिए हमें लेवलिंग की मदद करनी होगी, लेवलिंग की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली हम किससे मेजर करेंगे, डंपी लेवल से। अब मैं आपको क्या है कि इंस्ट्रूमेंट के इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से आइडिया आएगा, ठीक है। तो मेरे पास हमारे लेबोरेटरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके फोटोग्राफ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। फोटोग्राफ्स, ओके। सो मैं आपको चेन के अलग अलग फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज द चेन, ओके, अनदर वन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल्स है जिसकी मदद से हम चेन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ है, उसको हम टेली बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि वापस से आपको फर्स्ट पॉइंट पे जाना ना पड़े, ठीक है। वो मैं आपको अगला जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं आपको चेन सर्विंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है कि आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो याद रखना है कि इसकी ये मैट्रिक चेन है, और मैट्रिक चेन की मदद से हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द सिंपल टेस्ट। वन मोर थिंग, अगर आप कहीं पे भी गवर्नमेंट में इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं पे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू आपका है, ठीक है, तो वो एक सवाल हर बार पूछते ही है, अगर आप सर्वेइंग में इंटरेस्ट रखते हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट सर्वेइंग है, तो वो हर एक आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही। वो क्या पूछेगा कि चेन सर्वे में आपका जो हैंडल है वो किस मटेरियल का बना होगा, तो इसका मटेरियल आपका जो है, आपका आंसर होगा ब्रास मटेरियल, ठीक है। तब आप भूल जाते हो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आप भूल जाते हो कि ये ब्रास का बना होता है। अब आपको याद रहेगा, या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में याद होगा, लेकिन आप जब फाइनल ईयर में पहुंचोगे तब तक आप भूल चुके होगे। सो राइट ए फुट नोट इन योर नोटबुक, अ हैंडल ऑफ ए चेन सर्वे, आई एम राइटिंग हियर। आपको ये लिखना है, ठीक है, अपने नोटबुक में ये लिखना है कि a handle of a metric chain is made up with the brass material। ये हमने सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ा था, ब्रास क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो ये लाइन आपको एज ए फुटनोट तरीके से आपको लिखनी है कि सर्वेइंग चेन का जो हैंडल होता है वो ब्रास मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वापस से हम चलते हैं फोटोग्राफ की तरफ और देखते हैं फोटोग्राफ, ताकि अब और आइडिया है, ठीक है। सी दैट दिस इज द हैंडल ऑफ द चेन, ओके। और यहाँ पे कितने मीटर की चेन है वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। 20 मीटर की चेन है। नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ द चेन्स आर अवेलेबल, 20 मीटर मेट्रिक चेन एंड 30 मीटर मेट्रिक चेन, ओके। तो नॉर्मली हम 20 मीटर की चेन ही यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर डिफरेंट फोटोग्राफ ऑफ द चेन्स, दिस इज ऑन द ग्राउंड, ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अलग अलग फोटोग्राफ्स है, ठीक है। हैमर वी कैन यूज फॉर पेग, ओके। सो दैट इज फॉर द चेन। अब दूसरा जो इमेजेस हम देखते हैं, ठीक है, कंपास, कंपास के अलग अलग फोटोग्राफ देखते हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द प्रिज्मेटिक कंपास। व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रिज्मेटिक कंपास, बिकॉज इट हैज ए प्रिज्म। अगर मैं आपको दिखाऊं अलग अलग एंगल से, ये जो है बड़ा वाला आपको दिख रहा है उसको प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। यस,
यहाँ पे आपको ट्राइंगल का शेप दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला, है ना। तो ये ट्राइंगल है यहाँ पे बन रहा है, तो वो प्रिज्म शेप का है, ठीक है। प्रिज्म आपने देखा होगा, तो वो प्रिज्म ट्राइंगुलर शेप का है, तो इसीलिए ये प्रिज्मेटिक कंपास है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दो मेथड्स है हमारे पास, एंगुलर मेजरमेंट बाय प्रिज्मेटिक कंपास, है ना। तो ये प्रिज्म जो है बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है कि प्रिज्मेटिक कंपास है। दूसरे में क्या है, जिसमें प्रिज्म नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये वाला जिसमें प्रिज्म है ही नहीं, दिख रहा है यहाँ पे प्रिज्म नहीं है, सिंपल वर्टिकल बार्स है, वेंस है, ठीक है। तो इसको हम सर्वे कंपास बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे आप देखिए दो मेथड्स है एंगुलर मेजरमेंट की। एक हो गई प्रिज्मेटिक जिसमें प्रिज्म होता है छोटा सा, दूसरा हो गया सर्वेयर कंपास, ठीक है। तो अब फोटोग्राफ देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया आए, ठीक है। कंपास का फोटोग्राफ आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप बेटर है कि स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। तो ये कंपास है, ठीक है। अलग अलग इसको हम वेन्स बोलते हैं, वेन, PANE, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम वेन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वेन। फर्स्ट वन इज आई पीस, आई वेन, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट वेन है जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे, हमारी आई जो है वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अगर मैं आपको बता सकूं इसको कॉपी करके, ठीक है, ओके, ये हमारे पास इमेज आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम इस जो ऑब्जेक्ट वेन है उसमें भी देखेंगे, और तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट पीछे है उसको भी देखेंगे। वो तीनों एक लाइन में आने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द मेन कंसर्न अबाउट दिस कंपास, ठीक है। तो इसको हम स्लिट बोलते हैं, इसमें से आपको देखना है, फिर ऑब्जेक्ट वेन में देखना है। ये आपका आई के पास है तो इसको हम आई वेन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको हम ऑब्जेक्ट वेन बोलेंगे, ठीक है। अगर बीच में आपको कहीं पे भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्लियर? सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंट इमेजेस। Okay, so this is the important thing, prismatic compass. Okay, this is a prismatic compass, also a prismatic compass. Okay, now it is a surveyor compass. Okay, तो इसमें भी सेम थिंग, हमको तीन अलग अलग स्लॉट दिए गए हैं, ठीक है, राउंडर शेप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखना है, दैट इज योर आई वेन। दूसरी बात, ये आपकी ऑब्जेक्ट वेन है, उसमें से आपको देखना है। और थर्ड थिंग, आपको ऑब्जेक्ट को भी देखना है, वो तीनों एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द मेन फंडामेंटल ऑफ द कंपास सर्वेइंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके स्क्रीन के सामने अगर ये विजिबल है, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ धागा बना हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आया, कुछ स्ट्रिंग वगैरह यहाँ से है, यहाँ ऑब्जेक्ट वेन में बांधी हुई है, ठीक है। सो अब आपको मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो मुझे आंसर दे सकते हैं, कि आपने गिटार या फिर वायोलिन देखा होगा, है ना। तो कोई मुझे बता सकता है कि गिटार में और वायोलिन में कौन सा हेयर होता है, वो जो स्ट्रिंग बनी हुई होती है वो किसकी होती है? एनीबडी? सर कॉपर के ब्रास। ઓકે, કોપર બ્રાસ, ના ના, ધેટ ઇઝ અ રોંગ આન્સર. જે લોકોને મ્યુઝિકમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એને વધારે ખ્યાલ હોય કે ગિટાર એમને વગાડેલું હોય, સો દે કેન ફીલ ઇટ.
Anybody? So સર વગાડેલું છે. ha. Okay, so no problem, no problem. That is fine, that is fine. So it make you a surprise that a guitar ની અંદર જે string આવે છે એ ઘોડાનો વાળ હોય છે. That is a horse hair. Okay. શું કામ એમ કહું છું કે horse hair is the most stable hair in any kind of wind. Wind is blowing around you, तो wind effect માં એ stable રહેશે. घोड़े का जो बाल होता है वो कितनी भी wind हो वो वाइब्रेट नहीं करेगा, है ना. So that is the main point. Second thing, आपको रीडिंग एक्यूरेट मिलेगा. आपने अगर स्टेबल वायर यूज किया हुआ है ऐसा, ठीक है, तो वो क्या है कि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा. वरना क्या होगा कि आप प्लेन एरिया में हो और विंड ज्यादा बह रही है, विंड है वहां पे, तो ये हेयर वाइब्रेट करने लगेगा. तो वाइब्रेशन से क्या होगा, आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगा. ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट कंसर्न. सेकंड वन, हॉर्स हेयर पे थर्मल इफेक्ट नहीं आती है. जैसे कि हम समर टाइम में हमारा आयन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है. ठीक है, और ड्यूरिंग द विंटर टाइम आयन अवर सिंक हो जाता है. ठीक है, तो आपको वो थर्मल इफेक्ट जो है वो हॉर्स हेयर पे नहीं आती, इसीलिए हम घोड़े का बाल यूज करते हैं. सो अनदर ट्विस्ट क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वेन में, कंपास सर्वे में ऑब्जेक्ट वेन में जो हेयर है वो किस मटेरियल का बना होता है. तब आपको आंसर देना है सर वो कोई मटेरियल नहीं होता है, वो एक सिंपल घोड़े का बाल होता है. ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है. तो आप ये भी लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि आप जो सर्वेइंग में कंपास होता है उसमें जो हेयर होता है ऑब्जेक्ट वेन में वो हॉर्स हेयर होता है. राइट नाउ यू कैन सी हियर दिस इज नॉट ए हॉर्स हेयर. ये जो आपके सामने है वो घोड़े का बाल नहीं है. मुझे कैसे पता चला, मुझे इससे पता चला कि यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा छोटा धागे यहाँ पे बाहर निकले हुए थे. ठीक है, आपको देख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे जो धागे हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, यहाँ पे निकले हैं. तो घोड़े के बाल में क्या होता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट होता है. अगर मैं आपको बता सकूं गूगल से सर्च करके हॉर्स हेयर, तो इमेज में अगर हम देखें तो इस तरह से रखा जाता है इंस्ट्रूमेंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. Okay, there is a ad, but I want to show you something which is very interesting to you. तो ये हमारा जो है कंपास ऐसे रखा जाता है. ठीक है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन बता दूं. ठीक है, ऑडियो की कोई जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, सिंपल जो है इस तरह से रखा जाता है सर्विंग का कंपास. ठीक है, यस, नाउ इट इज क्लियर टू यू. तो ये जो है अब ठीक है, तो इस तरह से हम ट्राइपॉड पे ये हमारा कंपास इस तरह से रखेंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ बताया वैसे ही. ठीक है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो एकदम स्ट्रेट है हेयर. तो ये जो है दिस इज योर हॉर्स हेयर, दैट माइट बी. ओके, सो दैट इज द केस. हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे, है ना. ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, समझ में आया. तो ये ऑब्जेक्ट वेन की हम बात कर रहे हैं, प्रिज्म यहाँ पे है. ठीक है,
प्रिज्म यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, आईपीस से होते हुए आपको जाना है ऑब्जेक्ट वेन पे, ऑब्जेक्ट वेन से होते हुए जाना है आपको ऑब्जेक्ट पे। अगर हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से रेंजिंग रोड, ठीक है, तो आपको ये देखना है। तो दैट इज द केस। सो दिस इज द मेन कंसर्न। आप जब फाइनल ईयर में आओगे तब ये भूल जाओगे कि ये घोड़े का बाल था, ठीक है। फर्दर यू कैन सी द बबल ट्यूब्स आर आल्सो अवेलेबल इन दैट कंपास। Okay, so this is the image for the compass. Let us go back to the third equipment, डंपी लेवल। इससे भी आपको कुछ मदद मिलेगी। तो ये डंपी लेवल आप फिलहाल जो है ये आपको समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल जब करूंगा तब आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको क्या करना है कि ये इमेज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखते जाइए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज है। आपको यहाँ से देखना है आईपीस, और आपको ये जो ऊपर टावर दिख रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ से देखना है, ये टावर में देखना है, ये टावर पे देखना है, और ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। दैट्स इट, देख सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज अवर ऑब्जेक्ट पीस, दिस इज अवर रीडिंग। ओके, बबल ट्यूब इज ऑल्सो देयर। आपको उसी टाइप का इक्विपमेंट यूज करना है जिसके ऊपर लिखा है टेस्टेड ओके, है ना। अगर ये सिंबल नहीं है तो वो आप डंपी लेवल यूज नहीं करेंगे, ये डंपी लेवल है। ओके, दिस इज अवर फोर्थ एक्सपेरिमेंट, है ना। इस तरह से ओके टेस्टेड लिखा होना चाहिए, तभी आपको वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। अगर नहीं लिखा है तब आपको वो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, बिकॉज इट माइट बी इन द अंडर मेंटेनेंस ऑल्सो। ओके, तो ये फुट स्क्रू है, देख लीजिए। इसकी मदद से हम लेवल कर सकते हैं अपने डंपी लेवल को, है ना। तो ट्राई बेच बोलेंगे, ठीक है, वो हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे भी होता है सेंटरिंग के लिए बबल ट्यूब, है ना। आप देख सकते हैं बबल है इसमें। स्क्रूज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोकसिंग एंड ऑल द थिंग्स। ओके, इसको फ्रू, ठीक है, आप दिख रहा है ये फोकसिंग स्क्रू है, ठीक है। ये आईपीस है, ये आईपीस है उसका, है ना। ये लेवलिंग के लिए सेंटर है, सेंटरिंग है। फिर इसको हम बबल ट्यूब बोलेंगे, है ना। आईपीस वंस अगेन, दिस इज ऑब्जेक्ट पीस, इसको हम ऑब्जेक्ट पीस बोलेंगे, ऑब्जेक्ट पीस वंस अगेन। So this is the images for the dumpy level, which is used for the fourth experiment, vertical measurement. Okay. One more, ranging rods. Let us see ranging rod. This is the ranging rod, है ना। ये हम ग्राउंड में फिक्स करेंगे, ठीक है। ये रेंजिंग रोड है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम ग्राउंड में जो है वो फिक्स करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज द रेंजिंग रोड, यू कैन सी हियर। ओके, वन मोर टाइम, staff, you can see here। देखिए ये स्टाफ है, ओके, लेवलिंग स्टाफ। इस तरह से हम रीडिंग लेते जाएंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। फिर हो गया 0.5 मीटर, है ना। वो हम सीखेंगे 1 मीटर कैसे मेजर करेंगे, वो हम सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द लेवलिंग स्टाफ। और इमेजेस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। दिस इज द स्टाफ, यू कैन सी दैट, ना। तो आप देख सकते हैं इसकी मदद से हम लेवल मेजर कर सकते हैं कि हमारा, yes you can see that what is the height from the floor to the beam bottom। you can यहाँ पे बीम बॉटम की हाइट जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है, by using the dumpy level। okay, so this is the staff total station images, you can see that। okay, इस तरह से काम कर, this is the total station, you can see the eyepiece। okay, you can see that this is the total session in which we will perform all kind of practical all together,
and this is the battery of the total station. Okay, अगर आपने वो पेन वाला मोबाइल यूज किया है तो इट इज लाइक दैट, ये पेन है उसकी, यहाँ पे स्क्रीन पे आप कुछ लिखना हो या फिर कुछ आपको टच करवाना तो कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑल द थिंग्स, ओके ओके। So this is the total station and tripods. You can see the different types of the tripods are there, ठीक है। इसके ऊपर हम कंपास रखेंगे, है ना, tripod like that. Okay, this is the modified or another tripod, another type of tripod in which we are going to use the dumpy level, है ना, वो भी हम यूज करेंगे। This is the tripod, you can see here. Okay, so I hope that you have got the idea regarding what we are trying to convey you is that we are going to use the different kind of the instrument in our laboratory session. Okay, so that we have learned. Let us go to the page number 26. So you will get the idea about, we have seen this practical 5th number. Okay, so introduction to the surveying lab and instruments. To study the surveying lab and instruments, we will see this kind of apparatus and write the importance of the each instrument in the surveying. So that is the important thing. So practical 5 is over. That is your tutorial number 5. Okay, now you have any kind of doubt, you can ask me. I'm stop sharing. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूं ताकि हम फेस टू फेस बात कर सके, ठीक है। आई होप दैट देयर माइट बी नॉट एन इश्यू रिगार्डिंग द बैकग्राउंड because I am at my home, so there might be full possibility. Tonight I am turning on my video, so you can ask me the question. This is the clarity level you can get. अगर आपने रोल नंबर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको रिपीट नहीं करना है, आपको एक बार ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आई एम हियर। ओके, जिसको भी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, वो लीव कर सकते हैं। जिसको भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, गुजराती एनी लैंग्वेज। ओके સર આ અપલોડ કરશો એકવાર? હા, Portal 100%, પર? 100%। હા હા કરશું, આપણે અપલોડ કરીશું। હા, કેમ Yes. કે આ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે ને એના કારણે 100%, હું અપલોડ કરીશ અને તમને રેફરન્સ માટે તમારા આ જે ઈ કન્ટેન્ટ ની અંદર આ લેબ મેન્યુઅલ છે ને એ લગાવી દઈશ, એમાં અપલોડ કરી દઈશ, બરોબર? યસ સર. Okay, so don't worry about the materials, that I will also always keep update in your e-content. Just check it out that. Okay, किसको अगर डाउट है अभी? हेलो सर। हेलो, हाँ दीपक कुमार। बोले सर इसका बुक अलग से बनाना पड़ेगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, आप सर्वेइंग का जो आपका बुक है उसमें ही आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बुक बनानी है सर्वेइंग सब्जेक्ट की, ठीक है। और वो बुक जो है आपको, मतलब एक क्लास बुक रख लीजिए, एक पोर्शन क्लास का रख लीजिए, दूसरा पोर्शन जो लेबोरेटरी का रख लीजिए, ठीक है। सर लैब केवल आप ही लीजिएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जय सर भी लेंगे आपका, ठीक है। ठीक है। ओके, अनंत कुमार श्रीवास्तव, एनी डाउट? ओके, कुंज, क्या क्वेश्चन? नो सर. Okay, so you can leave and I will upload all the things which are relevant to your subject. Okay, thank you very much.